نجات کے ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم انجیل میں دیکھیں گے، اعمال کی کتاب میں خاص طور پر بات چیت کو دیکھیں گے جو یسوع مسیح کی شیطان اور بدروحوں کے ساتھ ہوئی۔ ہم اس طرح کی منسٹری کو دیکھیں گے جس کے بہت سے حصے ہیں۔ منسٹری کے بہت سارے دوسرے حصے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں ہر طرف بدروحوں کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایماندار کی حیثیت سے، روح سے معمور ایمانداروں کی حیثیت سے ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ شیطان کس طرح کام کرتا ہے، ہمارے ارد گرد موجود شیطانی دنیا کس طرح کام کرتی ہے۔ آئیے ایک لمحہ آج دعا سے آغاز کریں۔ باپ، ہم زندہ خدا کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے کلام کی قدرت آج ہمارے اندر کام کر رہی ہے۔ تمام دنیا کے لوگوں کو برکت دے، ہمیں سمجھ عطا کر، ہم پر اپنے کلام کو ظاہر کر، اور ہم ان تمام چیزوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ اچھا، تو ہم متی 9 باب پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو صرف متی نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ بات چیت ہے جو دوسری کسی بھی انجیل میں ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تو جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ یہاں متی 9 باب میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہم 32 آیت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، جب وہ باہر جا رہے تھے تو لوگ ایک گونگے شخص کو جس میں بدروح تھی یسوع مسیح کے پاس لائے۔ اب اس بات چیت سے پہلے ہم 2 اندھے آدمیوں کے ساتھ بات چیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ متی نے ان کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ شیطان کے زیر اثر تھے، وہ بدروح گرفتہ تھے، یا ان کا اندھا پن کسی شیطانی قوت کی وجہ سے تھا۔ تو ایک شفا ہے جو رونما ہوتی ہے، اور اب ہماری توجہ ایک ایسے آدمی کی طرف لائی گئی ہے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدروح گرفتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جسمانی طور پر تکلیف اٹھا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں ایک صورتحال دی گئی ہے۔ جس طرح ہر صورتحال شیطانی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بیماری، ہر ایک تکلیف، ہر مرض شیطانی حملے یا کسی شیطانی کام کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن اس ایک حوالے میں شیطانی قوت ہے۔ تو ہمیں ڈاکٹروں اور دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں عقل و سمجھ کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاک روح کو کام کرتا ہوا دیکھ سکیں، تاکہ ہم چرچ لیڈرز، روح سے معمور ایمانداروں، دوست یا رشتہ داروں کی حیثیت سے یہ سب کچھ جان سکیں۔ تو جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی حساس رہتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا کیا ذریعہ ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کوئی بیماری ہے، یہ کوئی مرض ہے، یہ کوئی شیطانی حملہ ہے، اور صرف پاک روح ہی ہمیں وہ دکھا سکتا ہے۔ اور تو وہ اس آدمی کو یسوع مسیح کے پاس لائے۔ کسی بھی شخص کو یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ بدروح گرفتہ ہے؟ جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں وہ اس جسمانی اثر کی وجہ سے یہ جانتے تھے جو اس کی زندگی پر ہوا تھا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم ان تمام چیزوں کی فہرست بنا سکیں جو شیطان نے کی یا جو بدروح کرتی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ روحانی طور پر موجود ہوتی ہیں تو جسمانی خرابیاں ہوتی ہیں، جذباتی خرابیاں ہوتی ہیں، یا تعلقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہو کہ وہاں پر بدروح موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے شاید بہت سی دوسری چیزوں کی بھی کوشش کی ہو، انہوں نے شاید دوا لینے کی کوشش کی ہو، انہوں نے شاید بیمار کے لیے دعا کرنے کی بھی کوشش کی ہو، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، اور وہ کسی ایسے شخص کو اس کے پاس لا رہے ہیں جو جسمانی طور پر اس چیز سے ستایا گیا ہے جو روحانی طور پر اس کے اندر ہے۔ تو اس کی روحانی حقیقت نے اس کی جسمانی حقیقت کو جنم دیا ہے۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب باقی تمام چیزوں کی کوشش کی جا چکی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ روحانی طور پر کیا موجود ہو سکتا ہے۔ تو وہ اسے یسوع مسیح کے پاس لائے۔ اب ایک لمحہ رکیں اور اس کے متعلق بات کریں کہ زیادہ تر لوگ جو بدروحوں سے ستائے جاتے ہیں، جو بدروحوں کی وجہ سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اب یسوع مسیح کے پاس جا نہیں سکتے، لیکن صرف یسوع مسیح ہی ان کا واحد ذریعہ ہے۔ میں ان کا ذریعہ نہیں ہوں، آپ ان کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ یسوع مسیح ذریعہ ہے، تو سوال یہ بنتا ہے
کہ हम किस तरह से लोगों को यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, हम किस तरह से लोगों को उसके पास ला सकते हैं जिन्हें वाकई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत है। मुझे यीशु की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास यीशु है। क्या आपको उसकी ज़रूरत है? जी हाँ, लेकिन क्या वो आपके पास है? हम किस तरह से उन लोगों को जो बदरू गिरफ्ता हैं, जो तकालीफ उठाते हैं, जो अजाब सहते हैं, जो उलझे हुए हैं, जो लतों में पड़े हैं, हम उन्हें किस तरह से यीशु मसीह के पास ला सकते हैं? और मेरा ख्याल है ये उसके मुतालिक बात करने का बहुत अच्छा वक्त है कि किसी को उसके मुतालिक फिक्र करने की ज़रूरत है, किसी को ये समझने की ज़रूरत। इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि वो उसे यीशु मसीह के पास लाए। दोस्त, रिश्तेदार, वज़रा, शायद कुछ पास्टर्स जिन्होंने कहा कि इस आदमी को आज़ाद होने की ज़रूरत है। और आपके और मेरे लिए क्या तस्वीर पेश की गई कि हमारे चर्चिज़ में, हमारे कन्वेंशंस में, आउटडोर तकरीबात में, हमारी मिनिस्ट्री में हमारे पास ये मौका होना चाहिए, दूसरे के पास मौका होना चाहिए कि उन लोगों को यीशु मसीह के पास ला सकें जो तकलीफ उठा रहे हैं, जो लतों और अजाब का शिकार हैं। ये उस वक्त होना चाहिए जब हमारे चर्चेस बहुत रस्मी बन जाते हैं, जब हमारा चर्च पाक रूह की आग के बगैर बिल्कुल मान पड़ जाता है, जब हमारी मीटिंग्स की तवज्जो सिर्फ मज़हब पर होती है या ये दिखाने पर होती है कि अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का क्या मतलब है, और हम इस बात को भूल गए हैं कि यीशु मसीह क्या करने के लिए आया था। यीशु मसीह वो करने के लिए आया था जो लोग चाहते थे कि वो करे, जो कोई भी और शख्स नहीं कर सकता था। कोई भी बदरू को नहीं निकाल सकता था, कोई भी शैतान को नहीं निकाल सकता था, कोई भी बदरूहों को रुखसत नहीं कर सकता था, कोई भी झूठा खुदा, कोई भी झूठा मजहब ये नहीं कर सकता था। सिर्फ यीशु मसीह ये कर सकता है। अब ये हम पर है, और आप और मैं ये कह सकते हैं कि अगर वो किसी अजाब में हैं, या अगर वो तकालीफ उठा रहे हैं, या किसी लत में मुब्तला हैं, तो उन्हें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। गौर से इस हवाले को देखिए। आइए फिर से इसे साथ मिलकर पढ़ते हैं। एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसे यीशु मसीह के पास लाया गया, और यहां पर मेरे दोस्तों, आपको और मुझे ईमानदार की हैसियत से, रूह से मामूर ईमानदारों की हैसियत से हमें बुलाया गया है, हमें मसा किया गया है। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम तकालीफ उठाने वालों को और उनको जो किसी लत में मुब्तला है यीशु मसीह के पास लाएं। आप कह सकते हैं कि शायद उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, और अक्सर औकात ये सच भी होता है, लेकिन शायद किसी को जरूरत भी हो। शायद इस तरह के 10 आदमी हो, शायद 100 आदमी हो, लेकिन वो उसी शख्स को उसके पास लाए जो उसके पास आने के लिए तैयार था, जिस पर पाकरू काम कर रहा था, जिसे यीशु मसीह निजात देने और शिफा देने के लिए तैयार था। यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हीं लोगों को ढूंढें जो न सिर्फ उन्हें यीशु मसीह से मुतारिफ करवाना चाहते हैं, बल्कि जो उनके साथ उस वक्त तक रहना चाहते हैं जब तक कि वो निजात याफ्ता ना हो जाएं। आमीन। जो उस वक्त तक उनके साथ रहना चाहते हैं जब तक उन्हें निजात ना मिल जाए। 33 आयत में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बदरू निकाल दी। वो हमेशा ऐसा ही करेगा। यीशु मसीह ने बदरू निकाल दी। उसने जिद्दोजहद नहीं की, उसने शेखी नहीं मारी, उसे माला या बुत हासिल करने की जरूरत नहीं थी, उसे उसके मुतालिक सोचने की जरूरत नहीं थी। ये फौरी तौर पर हुआ। तो यीशु मसीह ने बदरू को निकाल दिया, और फिर उस आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। और ये हमारे लिए जरूरी है। निजात के वसीला से उस आदमी को बहाली मिली। हमेशा ऐसा ही होता है, और मेरे ख्याल से हमारी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में आज एक मसला यह है कि दुनिया की तमाम कौमें यीशु मसीह से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और हम शैतान को ये मौका दे रहे हैं कि वो सब चीजों पर इख्तियार ले ले, और खुदा के बजाय कौमें आलमी हुकूमत की पैरवी कर रही हैं, और खुदावंद ने ही दरअसल उन्हें अंधा कर दिया है। बाइबल मुकद्दस कहती है जितना हम उन चीजों की तरफ देखते हैं उतनी ही हमें कम बहाली नजर आती है। अब लोग बहाली की इल्तिजा कर रहे हैं, लोग बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, लोग बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि मेरा दिल बहाल नहीं हो सकता, आपका दिल बहाल नहीं हो सकता जब तक कि यीशु मसीह उसे बहाल ना करे। क्या हर शख्स बदरू गिरफ्तार है? नहीं, लेकिन हर शख्स शैतान के हाथों तकलीफ उठा रहा है। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चाहे आपको ये मालूम हो या नहीं, आप हर एक से
आप पर से चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है, आप शैतानी रूहों से आज़ाद हो जाते हैं। शायद उन्हें आपके हर हिस्से तक रसाई हासिल ना हो, शायद वो पूरी तरह से आपकी रूह पर कब्जा करने में कामयाब ना हुए हों, लेकिन वो सब आपके खिलाफ काम कर रहे थे। और जब यीशु मसीह आपके पास पहुंचा तो उसने भी आपको बहाल किया। जब आपके लिए यीशु मसीह की मौत हकीकी हो गई, आपकी निजात उसके लिए हकीकी हो गई, ये बिल्कुल सादा सी बात है। हर इंसान शैतान के हाथों सताया जाता है, उसका मकसद यही है। अय्यूब की कहानी को देखें कि शैतान ने उसके साथ क्या किया और जो अफरा तफरी वो अय्यूब की जिंदगी में लेकर आया। ईमान के दूसरे हीरोज को देखें और देखें कि वो किन हालात से गुजरे। आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है कि निजात हासिल करना इंजील की बरकत में से एक है। ये इंजील का इस्तकाक है, ये इंजील का फल है। और अगर हम उसे मजीद देखना शुरू करें कि हम सब ने निजात हासिल की है और हमें फिर से निजात हासिल करने की ज़रूरत है, शायद हमें एक से ज़्यादा मरतबा ये करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ये इतना खौफनाक या पुरस्रार नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसी मिनिस्ट्री में मुंतकिल होना चाहिए जो शिफा के मुतालिक बात करती है, जो हमें खुशहाली के मुतालिक बात करने की इजाज़त देती है। ये हमें तकालीफ और जुल्म और सितम के मुतालिक बात करने की इजाज़त देती है, लेकिन ये हमें निजात के मुतालिक बात करने को रोकने, तमाम लानतों और जादूगरी को ख़त्म करने की इजाज़त देती है। मगरिब में हम लानतों और जादूगरी के मुतालिक नहीं सोचते, हम शैतानी कुव्वतों के मुतालिक ज़्यादा नहीं सोचते। एक तरह से हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। ये उन दूसरी जगहों पर होता है और दुनिया के बहुत से ममालिक में ये सच भी है। वो लानतों और जादूगरी की ताकतों को समझते हैं और वो न सिर्फ उसे समझते हैं बल्कि वो ये सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ वहां पर काम करती हैं। ये चीजें आलमी हैं, ये हर जगह पर काम करती हैं। जब मगरिब में कोई शख्स किसी नशे का आदी हो जाता है, कोई चर्स का आदी हो जाता है और फिर बहुत जल्द वो किसी और किस्म की गैर कानूनी मंशियात के आदी हो जाते हैं, जो गोलियों या किसी और कोकीन या जो कुछ भी होता है उसके आदी हो जाते हैं और फिर वो हेरोइन के आदी हो जाते हैं। अब हम इस तरह की शैतानी चीज़ों में किस तरह पढ़ते हैं, इन तमाम गैर कानूनी मंशियात का एक शैतानी पहलू भी होता है। ये बहुत सी दूसरी बुरी चीज़ों के लिए दरवाज़ा खोल देती हैं। ये सिर्फ तफरी या अच्छे वक्त के लिए नहीं होती, बल्कि ये रूहानी तौर पर भी बहुत सी चीज़ों के लिए दरवाज़ा खोल देती हैं। हम मगरिब में इसके मुतालिक बात करते हैं। हमारे चर्च, हमारे बहुत से चर्च, हमारे मेन लाइन चर्च जो 200 साल पहले बहुत पुरजोश हुआ करते थे, अब मेरे ख्याल से अब इनमें एक बदलाव है। अब आप इनमें अफसुर्दगी देख सकते हैं। अब वो यीशु मसीह के लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। ये सब कुछ कैसे हुआ? शैतान अपना काम जारी रखता है, उससे जो करना होता है वो करता है। और अगर हम कभी उसके खिलाफ खड़े होते हैं और अगर हम कभी उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, अगर हम कभी उसे नहीं पहचानते, तो हम कभी भी उस पर गालिब नहीं आ सकते। तो अगर हम अपनी सोच को बदलना शुरू करें और कहें कि मैं बचाया गया हूं, मुझे निजात दी गई है, ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं। यीशु मसीह आया और बदरूहें रुखसत हो गईं। वो शायद मेरे अंदर हों, शायद वो मुझ पर तारी होती हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो चली गईं। आमीन। यहां तक कि पतरस योएल की किताब का हवाला देता है कि आखिरी दिनों में जब वो आएगा तो छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा। और अगर आप इस लफ्ज को गौर से देखें तो इसका मतलब निजात है। निजात दी जाएगी। और मैं अंग्रेजी में पुरस्कार का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा कि हम इस इसरार को दूर करना चाहते हैं, हम इस खौफ को दूर करना चाहते हैं, हम इस उलझन को दूर करना चाहते हैं, हम इस समझ से दूर रखना चाहते हैं कि क्या चीज शैतानी है और क्या नहीं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। शैतान अपना काम कर रहा है, यीशु मसीह ने अपना काम किया। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? एक आदमी जो बदरू गिरफ्तार था, उसे यीशु मसीह के पास लाया गया। मैं कभी भी खुद से बदरूहों को दूर नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मजबूती नहीं है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह से दुआ करना शुरू करूंगा, जब मैं उस शख्स या उन लोगों के मुतालिक यीशु मसीह से बात करना शुरू करूंगा जो मेरे पास आते हैं, हालेलुया, वो उन्हें आजाद करना शुरू कर देगा।
हमने पूरी दुनिया में आउटडोर तकरीबात में बार बार ऐसा होते देखा है। मैंने अपने दफ्तर में बार बार ऐसा होते देखा है, या किसी के लिविंग रूम में ऐसा होते देखा है। जैसे ही मैंने उनके साथ दुआ की, क्योंकि जब भी हम उन लोगों को खुदा के पास लाने का काम करते हैं जो किसी नशे के आदी हैं या तकलीफ में मुब्तला होते हैं और वो उससे मिलते हैं, तो हर मर्तबा एक तब्दीली आती है। और 33 आयत में कहा गया है कि जब यीशु मसीह ने वो बदरू निकाल दी तो वो गूंगा बोलने लगा। जब आपका सामना यीशु मसीह के साथ होता है तो आपका मुंह, हम उसके मुतालिक बात करेंगे। ये एक और मसला है जो कि मगरिब में हमारे बहुत से चर्चिस के साथ है। यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है। मैं गवर्नमेंट के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं सकाफत के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं फिल्मों और टेलीविजन या मीडिया की खबरों के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। हमें क्या हो गया है? हम वही लोग हैं जिन्होंने इंजील को बाकी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया, और अब क्या आप जानते हैं कि बहुत से चर्चिस बंद हो रहे हैं और लोग अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ रहे हैं, और चर्चिस को खुशामदीद नहीं कहा जा रहा। हमारी सकाफत में ईमान को खुशामदीद नहीं कहा जा रहा। हमें क्या हो गया है? मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। हमारा इस तरह का सामना नहीं हुआ जो हमें मजबूर करे कि हम बोलें। हम रूहानी तौर पर गूंगे हो चुके हैं। पुराने वक्त में अंग्रेजी जबान में गूंगे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और अब हम मजीद इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। अगर आप बाइबल मुकद्दस का किंग जेम्स वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें लिखा है कि आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। जब कभी भी हम यीशु मसीह से जुदा होते हैं तो हम अपने मुंह से नहीं बोल सकेंगे। शायद हमारे पास अल्फाज हों, शायद हमारे पास अल्फाज आ रहे हों, लेकिन हम उन्हें बोल नहीं सकेंगे। बोलना इसके साथ ही शुरू होता है। बोलना वो है जो रूह से निकलता है, खासकर तब जब हम उससे बातचीत करते हैं। तो जब भी बदरूहें रुखसत होती हैं तो जबानी रद्द अमल जाहिर होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। आप मुझे एशिया में, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से दिख रही हैं, आप मुझे वस्ती लातीनी अमेरिका में से देख रहे हैं। सुनिए, जब भी हम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारी यीशु के साथ बात होगी, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि पाक रूह आपको भर देगा ताकि आपकी बातें उस जबान से अलग हों जो आपको उस वक्त सिखाई गई थी जब आप छोटे थे। ये आपकी सरजमीन की जबान से मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये आसमान की जबान बन जाती है, फरिश्तों की जबानें आपकी जबान बन जाती है। खैर, यहां इस आदमी के मुतालिक कुछ बहुत अहम बात है। ये आदमी यीशु मसीह से मिल रहा है कि उसने इजाद का तजर्बा हासिल किया, वो फौरी तौर पर बोलने लगा। हाँ, मैं इस बात को समझता हूं कि बदरू ने उसे कुछ भी कहने से रोका था, लेकिन उस तस्वीर की तरफ देखें जो मत्ती हमारे साथ बांट रहा है। वो कह रहा है कि यीशु मसीह से मिलो, बात करो। हम इस पर मजीद जोर नहीं दे सकते। अच्छा, तो ठीक है। यहां पर एक और अहम चीज है। लोगों ने ताज्जुब किया। मेरे लिए ये बहुत मायूसी की बात है कि मगरिब में, अमेरिका में और यूरोप में हमारे जो चर्चिज हैं, रूह से मामूर पेंटिकॉस्टल चर्च, पेंटिकॉस्टल हक पर मबनी चर्चिज भी लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, कि कोई भी इस तरह की ताकत को नहीं देख पाता। और हम बहुत जल्द इस बात को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह इस बात की तालीम देगा कि इस तरह की ताकत सिर्फ दुआ और रोजे के वसीला से ही आती है, या ये ताकतवर बदरूहें सिर्फ दुआ और रोजे के जरिए से ही निकाली जा सकती हैं। तो ये हमें वापस इस बात की तरफ लेकर आती है कि चर्च होने की हैसियत से क्या हम दुआ और रोजे में वक्त गुजार रहे हैं? हम दुनिया के बहुत से ममालिक में ये देख सकते हैं कि खुदावंद कहता है कि जहां मैं मौजूद होऊंगा वहां ये अलामत होगी। लोग निजात हासिल करेंगे, लोग आजाद होंगे, लोग तब्दीली का तजुर्बा हासिल करेंगे, वो रुकावटों को खत्म होता देखेंगे, वो आजादी हासिल करेंगे, और जो लतों में मुब्तला हैं और जो तकालीफ उठाती हैं वो आजाद किए जाएंगे। जो अजियत में हैं और जो परेशान हैं वो बहाली का तजुर्बा हासिल करेंगे। जब ये सब कुछ होता है तो लोगों की भीड़ आती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और मगरिब में हमें इसी चीज की कमी महसूस होती है। हाँ, हम बड़े इश्तहार लगाते हैं और बहुत भरपूर इबादत करते हैं, और हमारे चर्चेस खूबसूरत हैं, और मैं इनमें से किसी भी चीज से इनकार नहीं कर रहा कि अब भी सबसे बेहतरीन खिदमत
مغرب کے مبلغین کرتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہم بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ نسلوں کی باقیات ہے جس نے ایک بنیاد رکھی ہے، جس نے قیمت ادا کی۔ اب جب کہ ہمارے پاس وہ باقیات ہیں تو مغرب سے باہر ایک نئی بنیاد رکھی گئی ہے، یورپ میں نہیں، امریکہ میں نہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ایک نئی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بیشتر حصے کی بنیاد جنوب میں رکھی گئی ہے۔ ہاللویا! ہم اس سب کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں جو وہ آپ کے ساتھ اور پاکستان میں اور پورے ایشیا میں آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو وہ نکاراگوا اور پوری وسطی اور لاطینی امریکہ میں کر رہا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ جب میں خداوند کو آپ کے درمیان کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں حسد محسوس کرتا ہوں، لیکن میں بہت مایوس بھی ہوتا ہوں جب میں ہماری کھڑکیوں کو بند ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن میں امریکہ میں اور یورپ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کے پاس لائیں جو واقعی الجھے ہوئے ہیں، جو شیطان کی گرفت میں ہیں، جو شیطان کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، جن میں شیطانی زہر بسا ہوا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم انہیں یسوع مسیح کے پاس لائیں اور اس وقت تک ان کے ساتھ رہیں جب تک کہ وہ ان چیزوں کو دور نہیں کر دیتا۔ لوگوں نے تعجب کیا۔ پاک روح ہمیشہ اسی طرح سے خداوند کے کام کی تشہیر کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں پہلے کبھی ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خداوند کے مطابق نجات علامتوں اور عجائبات کی اعلیٰ ترتیب کی طرح ہے، نہ کہ جسموں کی شفا یا مردوں کو زندہ کرنا یا لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانا یا یہاں تک کہ پانی پر چلنا نہیں ہے۔ واہ، ہاللویا! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نجات، بدروحوں کو نکالنا اور پاک روح کو انڈیلنا، یہ سب کچھ اعلیٰ ترین ترتیب کی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اب سے عظیم تجربات جو ہم اس زمین پر حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے جسموں کی شفا ہی نہیں ہے، اگرچہ یہ بہت اہم ہے، لیکن یہ کسی غیب آلود روح سے حاصل ہونے والی نجات ہو سکتی ہے۔ یہ شیطان کے ہاتھوں یا اس کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کرنے والی نجات ہو سکتی ہے، اور یہ یسوع مسیح کے کیل والے داغدار ہاتھوں سے ملنے والی نجات ہے جو موت کو دور کرتی ہے اور اس میں زندگی ڈالتی ہے۔ وہ ساری خرابیوں اور بدصورتی سے ہمیں نجات بخشتا ہے، اور وہ زندہ خداوند ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ہمیں اس کے متعلق بہت کم بتاتا ہے۔ ہم زبور 106 میں ایک حوالہ دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں یہ ان چند حوالوں میں سے ایک ہے جو شیطانی قوتوں کے متعلق بات کرتا ہے، اور ہم اسے زبور 106 اس کی 34 آیت میں دیکھیں گے۔ اسرائیل نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ وہ قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے ملک کو خون سے ناپاک کر دیا اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے، اور خداوند کی نظر میں ان بتوں کے لیے محبت زنا تھی۔ ہم پرانے عہد نامے میں اسے دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ وضاحت نہیں دی گئی کہ بدروحیں کہاں سے آتی ہیں۔ آپ کی روح کو کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میری روح کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میری روح یہ جانتی ہے کہ ایک خداوند ہے جو خالق ہے، جو زندگی بخشتا ہے، اور بہت سے ایسے خدا بھی موجود ہیں جو جھوٹے ہیں، جو موت لاتے ہیں، اور میری روح یسوع مسیح کو تلاش کر رہی ہے، اسے ڈھونڈ رہی ہے، اور جب میں یسوع مسیح کو ڈھونڈ لوں گا تو میری روح فوری طور پہ یہ کہے گی کہ مجھے زندگی مل گئی ہے۔ باقی سب اس کی نقل ہے، اور دیکھیں کہ وہ کیا لاتے ہیں۔ وہ اسرائیلیوں کو قربان گاہ پر لے گئے، انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی قربانی دی۔ آئیے ان الجھنوں سے باہر نکلیں، ارد گرد دیکھیں کہ یسوع مسیح ہمیں کب آزاد کرے گا۔ آئیے دوسروں کو دیکھیں اور کہیں میں مسیحا کو جانتا ہوں، چاہ دہندہ کو جانتا ہوں، اور وہ آپ کو ہر مشکل سے باہر نکال سکتا ہے۔ آئیے یسوع مسیح پر بھروسہ کریں کہ وہ سب کام کرے۔ بائبل مقدس متی 9 باب اس کی 34 آیت میں کہتی ہے، مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے
बदरूहों को निकालता है। मत्ती ने यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम कर दिया है। वो छोटी सी आयत वहां पर रखी है ताकि वो हमें इस मुबाहिसे के लिए तैयार कर सके जो आगे 1-2 बाब में होने वाला है, और हम बहुत जल्द उसे देखेंगे। लेकिन वो चाहता है कि हम ये देखें कि हमेशा मुखालफत होगी, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं, ये जादू है। लेकिन जो शख्स निजात याफ्ता होगा, जो लोग दूसरों को यीशु के पास लाए हैं, जो लोग हकीकी तौर पर खुदावंद के मौजज़ात को जानते हैं, उनके लिए कोई धोखा नहीं होगा। जब आप यीशु मसीह को लोगों को निजात देते हुए देखेंगे तो ये इस बात की तस्दीक है कि खुदावंद मौजूद है, और जो कुछ भी वो करता है कोई भी और नहीं कर सकता। ये इस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह अपने कील से छेदे हुए हाथों के साथ, अपनी एक सांड के साथ जो नेज़े से खोली गई थी, कांटों के ताज की वजह से छेदी गई, उसकी भवें उन सब के साथ यीशु मसीह जो मसलूब हुआ था, वो यीशु मसीह जी उठा। सिर्फ यीशु मसीह के पास ही शैतान और तमाम बदरूहों पर गालिब आने की ताकत है। सिर्फ वही बदरूहों को निकाल सकता है और पाक रूह को उंडेल सकता है। सिर्फ वही हमें लतों से और हर किस्म की तकलीफ से, अजाब और हर तरह की मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है। और जब वो ऐसा करता है तो आपको ये खुद तक महदूद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये जानते हैं, क्या आप इस चैनल पर इत्तफाक से आए हैं, और क्या आपके अंदर मौजूद किसी चीज ने ये कहा है कि ठहरो, सुनो, देखो? हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह हकीकी है, वो जिंदा है, वो आज भी जिंदा है जैसे वो हमेशा था। वो आया, उसने आसमान पर अपने तख्त को छोड़ा, वो जमीन पर आया, उसने इंसानी जिंदगी गुजारी ताकि वो आपको जान सके। वो आपके दर्द को जानता है, वो आपकी जिद्दोजहद को जानता है, वो आपकी सोचों को जानता है, और वो आपके मकासद को जानता है, और वो इन सब से बढ़कर ये जानता है कि आप किस कदर खोए हुए हैं। वो ये भी जानता है कि आपको खुदा की शबी पे बनाया गया है। क्या आप यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके साथ एक नई जिंदगी में चलने के लिए तैयार हैं? फिर आज मैं वो शख्स हूं जो आपको यीशु मसीह के पास ला रहा हूं। मैं बिल्कुल इस कहानी की तरह हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, अब वक्त है कि आप यीशु मसीह को ढूंढें। आप ये इस तरह से कर सकते हैं। आपको खुदा यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत है कि मैं अपने गुनाह की माफी मांगता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसे ये कह रहे हैं कि तू वाकई खुदावंद है, सिर्फ तू ही मेरे दिल का एतराफ सुनने के लायक है, और मैं तुझसे इस बात का इकरार करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे लिए बेचैन हूं। दूसरी चीज ये कि आपको ईमान से अपने कदम उठाने की जरूरत है और ये कहें कि यीशु मसीह मुझे नई जिंदगी अता कर। मैं तुझ पे भरोसा करता हूं कि तू मुझे नई जिंदगी देगा। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ चीजें होंगी, शैतान आपको छोड़ देगा, लेकिन यीशु मसीह आप पर इख्तियार ले लेगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको किसी को यह बताने की जरूरत होगी कि आपकी जिंदगी बदल गई है। और जब आपके साथ ऐसा हो तो किसी शख्स को ढूंढें, किसी ईमानदार को ढूंढें। आप जानते हैं कि ईमानदार कौन होते हैं? उनके साथ हमेशा खुदा का कलाम होता है। आप जानते हैं कि ईमानदार कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे पर रौनक होती है, जिनकी खूबसूरत मुस्कुराहट होती है, जो यीशु मसीह से शर्मिंदगी महसूस नहीं करते और जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। अगर आप कभी उनसे नहीं मिले, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ मिलकर अभी इसी वक्त दुआ करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह, मैं अपने दोस्त को तुझसे मुतारिफ करवाता हूं। मैं इस शख्स को तुझसे मुतारिफ करवाता हूं जिसका दिल टूटा हुआ है, जो तेरे पास आने के लिए तैयार है। क्या तुझसे बचाएगा और निजात देगा और उन्हें एक नई जिंदगी देगा ताकि वो मजबूती से तेरे साथ चल सकें और फजल और खुशहाली के साथ तेरे साथ चल सकें, और एक आजिज दिल के साथ आज और हर रोज तेरे साथ चल सके। यीशु मसीह के अजीम नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपसे निजात के प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे।